Good morning, students. My name is Mridul Vaishne. I hope you all are safe and fine. So, in the previous video, I think you had completed the chapter number 3, and I hope you had done all the question answers of that chapter in your notebook. So, in this video, we are going to start the chapter number 4. The name of that chapter is Hypertext Markup Language, HTML. Okay, so students, I think in some of the minds there will be some questions related to this. Okay, what is this HTML language? Okay, so I will clear this first. Before starting this chapter, I want to ask some questions. So first, tell me that, okay, have you ever used any websites? Just like google.com or facebook.com or Instagram or any another thing. Have you accessed it? Yes, I think all the students has already used this type of websites. Okay, means उन्होंने internet access किया होगा. And for accessing the internet, I think all the students use one type of software. That one is browser, web browser. Means अगर आपको Google access करना होता है तो आप क्या करते हो? Simply सीधे जाकर web browser, Google Chrome web browser open करते हो and you type the google.com and then you press the enter key. So one type of web page appears. Yes. So हैव यू एवर नोटिस दैट कि जो वेब पेज क्रिएट हो रहा है या वेब पेज अपीयर हो रहा है आपके स्क्रीन पर, ठीक है, वो किस तरीके से क्रिएट हुआ, किस तरीके से डिज़ाइन हुआ, व्हाट इज़ द फंडा बिहाइंड इट, है ना? तो ये तो सोचना चाहिए आप लोगों को. सो हेयर आई विल टेल यू दैट कि व्हाट इज़ द फंडा और व्हाट इज़ द बेसिक बिहाइंड और व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस वेब पेजेस. ओके, कि ये वेब पेज जो है वो किस तरीके से क्रिएट होते हैं, ठीक है, कि आप उनको अपने वेब ब्राउज़र पर एक्सेस कर पाते हो. Okay, so here the language, the HTML, hypertext markup language, this type of language is used for creating the web pages that you use on your web browsers, means in the Google Chrome. Okay, so this language helps us for creating this type of web pages. Okay, so in the deep we will learn all these topics. Okay, so see this first one ki what type of topics we are going to learn in this chapter. Okay, so the topics to be covered in this video are: first one is what are web pages and the web browsers. Second one is about HTML. Then what is tag. Then creating the HTML document, HTML tags classified, basic HTML structure, then essential HTML tags, then text formatting tags, then attributes, then body tag attributes, then font tag attributes, then horizontal tag. Okay, so all these topics we will cover in this video. Okay, so first one is web page and web browsers. Students, I am hoping that after this video you will definitely create one web page that you can upload over the web browser. Okay, clear? मैं यहाँ पे ये तो नहीं सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम उसे इंटरनेट पे अपलोड कर देंगे, लेकिन मैं आपको ये श्योरली ये ज़रूर सिखा दूंगा कि हम एक सिंपल सा बेसिक HTML कोडिंग के थ्रू वेब पेज कैसे क्रिएट करेंगे. ओके, so first one discuss that first we will discuss that कि what are web pages and the web browsers. Okay, first one, web pages. Web pages have different layouts with pictures, sounds and videos embedded in them. Okay, आपने देखा होगा कि आपने अपने कंप्यूटर पर वर्ड फाइल ओपन करी होगी या पावर पॉइंट फाइल ओपन करी होगी या MS Excel ओपन करा होगा. आप वहाँ पर क्या करते हैं? आप अपने कंटेंट को स्टोर करते हैं. जस्ट लाइक मैं एक MS वर्ड और सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो आप MS वर्ड पर क्या करते हो? अपना कंटेंट टाइप करते हो. सेम वे आप उसमें कोई साउंड फाइल भी लगा सकते हो. सेम वे आप उसमें पिक्चर्स भी इंक्लूड कर सकते हो. यस और नो? तो आप क्या करते हो? इन चीज़ों के थ्रू आप अपने वर्ड फाइल को अट्रैक्टिव बनाते हो. सेम वे हमारा वेब पेजेस भी जो होते हैं वो वेब पेजेस भी क्या करते हैं? एक डिफरेंट लेआउट्स कंटेन करते हैं जिसमें आपके पिक्चर्स भी हो सकते हैं, साउंड भी हो सकते हैं, वीडियोस भी हो सकते हैं, कंटेंट टेक्स्ट भी हो सकता है.
Okay, so that you see over the web browsers, है ना? So see, what are web browsers? Web browser is a software which is used to read the HTML document and display it as a web page. तो web browser क्या करता है? ये एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, जो HTML डॉक्यूमेंट होता है, जिस HTML लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं, उस HTML लैंग्वेज के थ्रू हम क्या करते हैं, एक कोडिंग लिखते हैं, एक कंटेंट टाइप करते हैं, किसमें, टेक्सचुअल फॉर्म में, ठीक है? तो वो टेक्सचुअल फॉर्मेट को, उस कोड को वेब ब्राउज़र क्या करता है, उन कोड्स को रीड करता है और उसे एक वेब पेज की फॉर्म में आपके वेब ब्राउज़र पर डिस्प्ले करता है। मींस आपने देखा होगा कि आपके वेब पेजेस पर ग्राफिक्स होते हैं, बहुत सारी इमेजेस होती हैं, वीडियोस होती हैं, साउंड होती हैं, लेकिन हम HTML में कुछ इस तरीके की इमेजेस इंसर्ट नहीं करते, हम कभी भी ग्राफिकल फॉर्मेट यूज़ नहीं करते HTML कोडिंग में। वी ओनली राइट the codes and that codes are in the form of the text, ठीक है? तो ये वेब ब्राउज़र क्या करता है, उन लिखे हुए टेक्स्ट को, कोड्स को क्या करता है, रीड करता है, उन्हें कन्वर्ट करता है और आपके जो रिक्वायर्ड आपका वेब पेज है, जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए, उस फॉर्मेट में आपको वेब ब्राउज़र पर डिस्प्ले कराता है। ओके, सो सी दिस इन दिस इमेज I had taken the screenshot of one web browser screen. So see this. This one is the web browser, and the that you can see that on this web browser one content is written google.com. ठीक है, this is the web page. ओके, तो ये जो वेब पेज है google.com, ये वेब ब्राउज़र पर ओपन हो रहा है। कौन से वेब ब्राउज़र पर? google.com वेब, सॉरी, गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र पर। ओके, क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अबाउट HTML. Okay, so in HTML a block of text is enclosed within text that indicates how the text should appear. Means कि आपका जो टेक्स्ट होता है वो HTML कोडिंग में टेक्स्ट के बीच में लिखा होता है। ओके, दैट वी विल सी इन द डेमो सेशन कि हम क्या करते हैं, अपने जो भी कंटेंट हमें अपने वेब पेज पर अपीयर कराना होता है, दैट वी राइट विद इन द between the text, okay, and that text tells कि how the text should appear over the web page. इन्हीं text की वजह से हमें पता चलता है कि हमारा जो text है वो किस तरीके से हमारे web page पर appear होगा। Okay, clear? And next thing is, what is the full form of this HTML? Okay, see this here. H stands for hyper, T stands for text, M stands for markup, and L stands for language. Here the every word is having their own meaning. Okay, इसी के बेस पर इस लैंग्वेज का नाम पड़ा है HTML. See the meaning of every text. First, hypertext. Here we are taking both the words as a single word. Hypertext. Hypertext refers to the way in which web pages are linked together. Okay, मीन्स हाइपरटेक्स्ट ये हमें बताता है कि हमारे वेब पेज जो हैं वो किस तरीके से एक दूसरे से लिंक्ड हैं। आपने देखा होगा कि जब भी आप गूगल पर आप कुछ भी जब सर्च करते हैं, सो व्हाट यू गेट द लिंक्स। यस, यानी कि आपको गूगल क्या करता है, कुछ टेक्स्ट सर्च करके देता है ना, और आप क्या करते हो, उन टेक्स्ट पर क्लिक करते हो। जैसे ही आप उन टेक्स्ट पर क्लिक करते हो, particular browser sends you on a particular website. जैसे कि suppose that you are searching for the Facebook. जैसे ही Facebook को आप सर्च करोगे, so you will get some content, and जैसे ही आप Facebook पर उस टेक्स्ट पर क्लिक करोगे, आपका Facebook का वेब पेज ओपन हो जाता है। It is because of the hypertext. यानी कि यहाँ पर क्या है, आपका जो टेक्स्ट है वो एक पर्टिकुलर वेबसाइट से लिंक्ड है, जिससे कि आप जैसे ही आप उस टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, सो अनदर वेब पेज ओपन हो जाएगा। इट इज कॉल्ड द हाइपरटेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट वन इज मार्कअप लैंग्वेज. मार्कअप लैंग्वेज कंट्रोल्स द टेक्स्ट विद टेक्स्ट फॉर डिस्प्लेइंग इट ऑन वेब ब्राउजर. मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है? एक्चुअली हम इस HTML लैंग्वेज में देखेंगे कि हम एक स्पेशल टाइप के टेक्स्ट को यूज़ करते हैं विद एंगल ब्रैकेट्स. ओके, तो दीज एंगल ब्रैकेट्स विद द टेक्स्ट डिफाइंस कि हाउ योर कंटेंट और टेक्स्ट विल अपीयर ओवर द वेब पेज. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द मार्कअप. यानी कि जो फॉर्मेट होता है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, जिस फॉर्मेट की वजह से ही आपका टेक्स्ट वेब पेज पर डिस्प्ले होता है. ठीक है, दैट फॉर्मेट इज कॉल्ड द मार्कअप.
Okay, clear? Now next topic is create an HTML document. Okay, so for creating an HTML document we required the special type of software. The name of that is text editing softwares. Text editing softwares means ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो हमें टेक्स्ट यानी कि टेक्स्ट टाइप करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, जस्ट लाइक नोटपैड, MS वर्ड, वर्डपैड, एंड इट दीज सॉफ्टवेयर ऑल्सो प्रोवाइड द एडिटिंग फैसिलिटी. मीन्स आप इसमें कुछ भी टाइप कर सकते हैं और कुछ भी एडिट कर सकते हैं. Okay, so these type of softwares are called text editing softwares. So basically for creating the HTML document we generally use the Notepad software. Okay, next thing is the Notepad software alone is not sufficient for creating the HTML code. We required one more method in it. After creating the HTML code, what we have to do, we have to save our file with a different method. ओके आपने क्या करा होगा, पहले जब भी आप कोई भी MS वर्ड में या किसी भी अनदर फॉर्मेट सॉफ्टवेयर में फाइल क्रिएट करते हैं, यू डायरेक्टली क्लिक ऑन द सेव एज, यू राइट द फाइल नेम एंड देन यू क्लिक ऑन द सेव बटन. बट in this you have to add one more task. The task is that at the time of saving a file, okay, see this, there is one block file name. In this you have to write your file name, but along this you have to write one keyword also. That keyword is HTM or HTML. It's your choice कि आप HTM लिखना चाहते हैं या HTML लिखना चाहते हैं. Both will work. And that text you have to add with your file name. Okay, जिसे हम कहते हैं extension. Okay, बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम नोटपैड फाइल की बात करते हैं तो अगर आप इस एक्सटेंशन को यूज़ नहीं करेंगे, सो योर फाइल विल बी सेव्ड विद द .txt एक्सटेंशन. TXT स्टैंड्स फॉर टेक्स्ट, लेकिन हमें क्या करना है, हमें HTML फाइल बनानी है. सो दैट्स वाई विद द फाइल नेम वी हैव टू राइट द एक्सटेंशन ऑफ द HTML. सो आफ्टर द फाइल नेम यू हैव टू राइट .html. ठीक है, अगर आप इसे नहीं लिखेंगे तो आपका जो पूरा कोड है वो बेकार हो जाएगा, मीन्स आपकी HTML फाइल क्रिएट नहीं होगी. सो दैट्स वाई इट इज़ कंपल्सरी. आफ्टर द फाइल नेम यू हैव टू राइट .html and then after that you can click on the save button. Clear? Now next is about tags. अब इतनी देर से बात चल रही थी tags. What is tags? Now see this. A tag is a markup which indicates how contents on a web page should look. टैग क्या होता है? टैग ये इंडिकेट करता है कि आपको जो कंटेंट है वो वेब पेज पर किस तरीके से दिखना चाहिए. ओके, वी विल सी दिस. फर्स्ट सी द सिंटेक्स. कि सिंटेक्स क्या होता है? वी write all our tags within the angle brackets. See this, this is the left angle bracket, open angle bracket. ठीक है, then you have to write your tag name and then after that you have to close this angle bracket. And these tag names are the fixed ones. मीन्स आपकी HTML में टैग नेम जो है वो ऑलरेडी डिफाइंड है, आप केवल उन्हीं को यूज़ कर सकते हो. उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा अपने मन से आप किसी भी टैग को यूज़ नहीं कर सकते. तो वी विल लर्न दैट कि what type of tags we can use in our HTML. Okay, clear? See this, I am taking one example. There is one tag B. B stands for bold. Okay, मीन्स यहाँ पे मैंने क्या लिखा, B लिखा, फिर B टैग लिखा, उसके बाद मैंने कंटेंट लिखा BLS, उसके बाद मैंने इस टैग को क्लोज किया है. ओके, वी विल सी दिस, वी विल लर्न कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस ओपन टैग एंड द क्लोज टैग. ओके, इन दोनों टैग के बीच में मैंने एक कंटेंट लिखा है BLS. नाउ सी द आउटपुट कैसे अपीयर होगा. ये सिंपल लिखा हुआ था. सी दिस, आफ्टर यूजिंग दिस बोल्ड टैग, B टैग स्टैंड्स फॉर बोल्ड टैग, ये कंटेंट आपका क्या हो गया, बोल्ड हो गया, थिकनेस इंक्रीज हो गई. ओके, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस टैग. ओके, सो दिस BLS जो बोल्ड में लिखा हुआ है, दिस कंटेंट विल अपीयर इन द वेब पेज एंड दिस इज द कोड दैट वी विल राइट इन द नोटपैड. ओके, क्लियर? धीरे धीरे थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज HTML टैग्स क्लासिफाइड. ओके, हमारे HTML के जो टैग्स हैं वो कैसे क्लासिफाइड हैं, कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड हैं.
we can classify HTML tags under two categories. These are, first one, container tags. Container tags have a beginning tag and an end tag, and the end tag is similar to the beginning tag but a स्लैश इन फ्रंट ऑफ इट. आपने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था, एक बी लिखा हुआ था सिंपल, एक बी के साथ एक स्लैश लगा हुआ था. तो दीज आर कॉल्ड द ओपन टैग एंड क्लोज टैग. ठीक है, और इन द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टैग आर इज कॉल्ड कंटेनर टैग. ओके, तो ऐसे टैग जिसके ओपन टैग के साथ साथ क्लोज टैग भी होता है, ठीक है, वो टैग्स कहलाते हैं आपके कंटेनर टैग्स. ऑल द टैग्स आर नॉट द कंटेनर टैग्स. सम आर कंटेनर्स, सम आर द अनदर वन इज empty tag. Okay, so see this, I had taken one example of the container HTML, then बीच में कुछ कंटेंट आएगा, आफ्टर दैट दिस इज कॉल्ड द क्लोज्ड HTML. यानी कि अगर उसी टैग के आगे अगर हम स्लैश लगा देते हैं, स्लैश भी स्पेशल टाइप का यही वाला लगेगा, दूसरे टाइप का स्लैश नहीं लगेगा. ओके, सो दिस इज कॉल्ड द क्लोज्ड HTML. ओके, तो अगर ये दोनों ओपन HTML और क्लोज HTML ऐसे ओपन टैग और क्लोज टैग का कॉम्बिनेशन होता है तो ये कहलाता है आपका कंटेनर टैग. नेक्स्ट वन इज एम्प्टी टैग. एम्प्टी टैग्स आर स्टैंड अलोन टैग्स एंड डू नॉट हैव एन एंड टैग. यानी कि ऐसे टैग्स जिसका ओपन टैग तो होता है लेकिन क्लोज टैग नहीं होता. ठीक है, दीज आर कॉल्ड स्टैंड अलोन. ओके, सो एंड ऑल्सो कॉल्ड द एम्प्टी टैग्स. ओके, सी दिस द एग्जाम्पल BR टैग. दिस स्टैंड्स फॉर ब्रेक द लाइन. Okay, यानी कि it works just like a enter key. Okay, that we will discuss later. Okay, so see this, there are two types of tag, container tag and empty. Open के साथ साथ close tag भी हो तो container, और केवल open tag हो, this is called empty tag. Okay, next one is basic HTML structure. Actually, in the HTML coding we are having one structure that we have to follow in every HTML coding. जब भी आपको HTML कोडिंग लिखनी है तो सबसे पहले आपको इस स्ट्रक्चर को टाइप करना ही पड़ेगा. आफ्टर दैट ओनली यू कैन डू द चेंजेस इन इट. ओके, सी दिस इज द HTML स्ट्रक्चर. फर्स्ट वन, HTML टैग, देन हेड टैग, देन टाइटल टैग, देन यू हैव टू राइट सम कंटेंट फॉर द टाइटल, देन टाइटल क्लोज, then head close, then body open, then you have to write some content, and then body close and HTML close. Means आपकी जो tag format है that you have to follow in every HTML coding. ठीक है, पहले HTML open, then head open, then title open, then title close, then head close, then body open, then body close and then HTML close. इस फॉर्मेट को आपको यूज़ करना ही करना है. अगर आपने इस फॉर्मेट में कहीं भी कैसे भी चेंजेस करे आपकी सारी कोडिंग बेकार हो जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पर मिस्टेक करने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो आपको सेम फॉर्मेट ही यूज़ करना है. अगर आपने एक भी कहीं भी अपनी मर्जी से चेंजेस करे तो आपका पूरा का पूरा कोड बेकार हो जाएगा. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज इसेंशियल HTML टैग्स. आपने देखा कि आपके बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ टैग्स यूज होते हैं जो आपके हर एक HTML कोडिंग में यूज होंगे. ठीक है, सो सी द डिस्क्रिप्शन अबाउट ऑल दीज टैग्स की व्हाट इज द यूज ऑफ these different टैग्स. फर्स्ट वन इज HTML टैग ओपन एंड क्लोज. सो ओपन है, क्लोज भी है, इट मीन्स दैट इट इज अ कंटेनर टैग. यस, सो दिस बेसिकली डिफाइंस द डॉक्यूमेंट एज वेब पेज. यानी कि एक्चुअली इसे हम ये भी कह सकते हैं कि दिस इज द स्टार्टिंग टैग ऑफ योर HTML कोडिंग और एंड टैग ऑफ योर HTML कोडिंग. यानी कि अगर आप HTML कोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा दिस ओपन HTML टैग. अगर आप अपनी HTML कोडिंग क्लोज कर रहे हैं तो यू हैव टू राइट दिस टैग क्लोज HTML टैग. ठीक है, अगर आप इन टैग्स को से स्टार्ट नहीं करोगे और एंड नहीं करोगे तो आपका प्रोग्राम HTML प्रोग्राम नहीं माना जाएगा. ओके, क्लियर? नेक्स्ट वन इज हेड. Head comes just after the open HTML tag. It contains information about the web page that will not appear on the actual page. ये एक ऐसे कंटेंट को कैरी करता है जो वेब पेज के बारे में इंफॉर्मेशन तो देता है, लेकिन जब हम इसका वेब पेज क्रिएट करेंगे तो वो वेब पेज पर इंफॉर्मेशन अपीयर नहीं होगी, मीन्स यूजलेस है. ओके, नेक्स्ट वन इज टाइटल टैग.
It contains title of the web page that will appear in the title bar of the web browser. यानी कि जब आप वेब ब्राउज़र पर अपने वेब पेज को शो कराओगे तो वेब ब्राउज़र के टाइटल बार में जो कंटेंट अपीयर होगा दैट कम्स बिकॉज ऑफ दिस टाइटल टैग. आपने देखा होगा जब भी आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हो तो जो टैब होती है, टैब में आपका जो टाइटल आता है दैट कम्स जस्ट लाइक आपने google.com ओपन करा तो आपके टैब में क्या आएगा, गूगल लिखा आता है. सपोज दैट आपने facebook.com ओपन करा तो आपके टैब में क्या लिखा आता है, ओनली फेसबुक. ठीक है, जो ये कंटेंट अपीयर होता है इट इज़ बिकॉज ऑफ द टाइटल टैग. क्लियर. नेक्स्ट वन इज बॉडी टैग. It contains all the information that will display on the web page. Means आपको जो भी information अपने web page पर show करानी है that information you have to write between this open body and close body. आपने अभी तक देखा कि सारे के सारे टैग क्या है, ओपन भी हैं और क्लोज भी हैं. इट मीन्स दैट ऑल दीज टैग्स आर द कंटेनर टैग्स. ओके, सो जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको वेब पेज पर डिस्प्ले करानी है ऑल द इंफॉर्मेशन यू हैव टू राइट बिटवीन दिस ओपन बॉडी एंड क्लोज बॉडी. क्लियर. सो दीज आर द बेसिक एसेंशियल टैग्स ऑफ योर HTML कोडिंग जिसको आपको यूज करना ही करना है. नेक्स्ट वन इज टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स. यानी कि जब आप बेसिक टैग्स क्रिएट करने लग जाते हैं या बेसिक HTML कोडिंग स्टार्ट करने लग जाते हैं तो आपको अपने टैग्स को कुछ फॉर्मेट चाहिए होता है. मीन्स आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई भी वेब पेज ओपन करते हो तो आपका टेक्स्ट होता है वो कुछ स्टाइल्स में लिखा होता है, कलरफुल लिखा होता है. ठीक है, या इमेजेस इंसर्टेड होती हैं या पैराग्राफ्स बने होते हैं, टेबल फॉर्मेट में होता है, इमेजेस इंसर्ट होती हैं. सो ऑल दिस कॉल्ड इज फॉर्मेटिंग. और उसमें भी अगर कोई फॉर्मेटिंग टेक्स्ट पर हो रही है तो दिस इज कॉल्ड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग. ओके, सो सी विच टाइप ऑफ टेक्स्ट वी कैन यूज इन अवर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन द HTML. See, the first one is heading tag. The heading tag is HN and HN close. So you can see that it is a container tag. Yes, here N stands for the numbering 1 to 6. Okay, it lies from 1 to 6. If in the place of N you will use 1, so it will create a largest heading for your HTML document. जैसे जैसे आप नंबर को चेंज करते जाओगे 1 to 6 योर हेडिंग साइज विल बी डिक्रीज और द बोल्डनेस ऑफ द हेडिंग विल बी डिक्रीज्ड. ओके, आपने देखा होगा कि आपके वर्ड फॉर्मेट MS वर्ड में आपके डिफरेंट टाइप्स के हेडिंग फॉर्मेट्स होते हैं. यस, द सेम वे दैट फॉर्मेट्स यू कैन अप्लाई विद द हेल्प ऑफ दिस हेडिंग टैग. ओके, दैट वी विल सी इन द डेमो सेशन. The HN tag is having one attribute. The name of that is align. Align stands for alignment. Means अगर आपको अपनी हेडिंग को किसी अनदर पोजीशन पर शिफ्ट करना है. अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, टेक्स्ट को शिफ्ट करना फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर. ओके, सो suppose by default your headings appears in the left hand side. Suppose if you want to shift your headings in the center or in the right hand side, that you can do with the help of this align attribute. Okay, we will see this ki how we can use this attribute. Next one is paragraph tag. पैराग्राफ टैग इट इज़ यूज टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ. आपने देखा होगा जब भी आप कॉपी में नोटबुक में कुछ भी टाइप करते हैं, लिखते हैं सॉरी, तो वेन एवर यू वॉन्ट्स टू चेंज द पैराग्राफ व्हाट यू कैन डू, यू लीव सम स्पेस आफ्टर द लास्ट लाइन. Okay, the same way you can give some space after the last line by using the paragraph tag. Actually in this HTML कोडिंग जो आप MS वर्ड में जनरली एंटर की के थ्रू नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर जाते हैं या ज़्यादा स्पेस दे देते हैं, दैट टास्क वी कांट परफॉर्म इन द HTML. फॉर एवरी थिंग वी हैव टू यूज़ द टैग्स. मीन्स अगर आपको लाइन भी चेंज करनी है जैसे एंटर की के थ्रू करते हैं, उसके लिए भी हमें टैग यूज़ करना पड़ता है. ओके, क्लियर. सो सेम वे p tag is also having the same attribute, that one is align, and it is also used for shifting the paragraph into the center or in the right or in the left. By default it is left. Next one is bold tag.
आपने देखा होगा कि MS वर्ड में हमारे पास बहुत सारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस होते हैं, बोल्ड करना, टेक्स्ट को बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना. ऑल दीज टास्क वी कैन ऑल्सो परफॉर्म इन द HTML coding. Okay, so for that what do we have to use? B tag. Okay, this tag is used for darken the text. Okay, same way italic का use क्या होता है? Text will be slightly slant to the right. Okay, underline for creating the underline. सुपरस्क्रिप्ट टैग, ये भी आपने ऑप्शन यूज करा होगा सुपरस्क्रिप्ट का और सबस्क्रिप्ट का MS वर्ड में. ओके, सो इट शिफ्ट द कंटेंट द अबव द नॉर्मल line. Same way subscript, it shifts the text below the normal line. Okay, so all these tags we will perform in the demo session. Only see this कि bold tag के लिए हम क्या यूज करते हैं? B. italic के लिए क्या यूज करते हैं? I. underline के लिए U. सुपरस्क्रिप्ट के लिए टैग यूज होता है SUP स्टार्टिंग 3 letters. सबस्क्रिप्ट के लिए SUB स्टार्टिंग 3 letters. Okay, only you have to learn these tag formats and the names. Okay, next one is center tag. Center tag is used for center aligning everything. यानी इसके बीच में, इस टैग्स के बीच में आप जो भी लिखेंगे, टाइप करेंगे, ठीक है, all will shift in the center of the page. लाइन ब्रेक टैग जिसकी हम बात कर रहे थे, इट इज़ यूज टू गिव अ लाइन ब्रेक और स्टार्ट अ न्यू लाइन. इट जस्ट वर्क्स लाइक अ एंटर की. जैसे आप MS वर्ड में एंटर की का यूज करते हैं, द सेम वे BR टैग वर्क्स. ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट अबाउट एट्रीब्यूट्स. एट्रीब्यूट्स आर यूज टू एक्सटेंड द फंक्शनलिटी ऑफ द टैग. जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो क्या करते हैं? हमारे टैग्स की फंक्शनलिटी को इंक्रीज कर देते हैं. यानी कि जो हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग होती है उसमें भी एक्स्ट्रा वर्क करना. जस्ट लाइक आपने देखा होगा कि हमारा जो सपोज दैट इफ़ आई वांट टू चेंज द साइज ऑफ द फॉन्ट, सेम वे इफ आई वांट टू चेंज द कलर ऑफ द फॉन्ट, ठीक है, सो दिस चेंजिंग द साइज और चेंजिंग द कलर, चेंजिंग द फेस, ऑल दिस आर द एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी ऑफ द टेक्स्ट. यस, सो this comes in the category of the attributes in the HTML. Okay, now what is the syntax of using the attributes? Syntax is, first one, after opening the angle bracket you have to write the tag name and then you have to give one space. ओके, इस चीज़ का ज़रा ध्यान रखना कि आपको टैग नेम के बाद आपको क्या करना है? एक स्पेस देना है. आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द एट्रीब्यूट नेम, देन इक्वल साइन, एंड आफ्टर दैट you have to write the value of that attribute. Then you have to close the angle bracket and then you have to write the text on which you want to apply a particular formatting. Okay, and then you have to close this tag by using the slash sign. Okay, see this, I had taken one example of this attribute. There is one tag font which is used for changing the formatting of the text. Okay, the font is having one attribute. The name of this is color, COLOR. You know that in the computer the spelling of color is COLOR. Okay, equals to the value of this attribute. color में क्या values हो सकती हैं उसके colors. Okay, so that's why I had taken here red. Then angle bracket close, then the text on which I want to apply the formatting, then tag close. See, this is the output that will appear on the web page. This tag format will appear in the notepad and this output will appear in the web page. Okay, that you will see in the demo session. Next one is body tag and its attributes. Okay, body tag is used to hold the content and with its attributes we can enhance formatting of the web page. You know that body tag का use क्या होता है कि कंटेंट को होल्ड करना. कौन से कंटेंट को? जिस कंटेंट को आप वेब पेज पर शो कराना चाहते हो. ओके, सो बॉडी टैग इज ऑल्सो हैविंग एट्रीब्यूट्स बाय विच वी कैन एनहांस अवर फॉर्मेटिंग ऑफ द वेब पेज. सो दीज आर BG कलर, टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड. BG कलर एक्चुअली इट इज़ यूज फॉर चेंजिंग द बैकग्राउंड कलर. आपने देखा होगा कि जब भी आप वेब पेजेस एक्सेस करते हो, वेबसाइट्स एक्सेस करते हो, तो किसी का बैकग्राउंड कलर रेड होता है, किसी का ब्लू होता है, किसी का ब्लैक होता है, किसी का वाइट होता है. ठीक है, सो दिस थिंग वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ दिस BG कलर attribute of the body tag. So it is used to set the background color of the web page. Same way, the another attribute is text.
it is used to set the color of the text. You know that by default जब भी हम MS Word पर कुछ भी टाइप करते हैं तो कौन सा कलर अपीयर होता है? ब्लैक. यस. तो सेम वे by default you can set the color of the text by the help of this text attribute. यानी कि आप एक बार जब इसमें टेक्स्ट का कलर सेट कर देंगे तो जो भी आप कंटेंट टाइप करेंगे बॉडी सेक्शन में ऑल विल अपीयर इन दैट पर्टिकुलर कलर. ओके. नेक्स्ट वन इज बैकग्राउंड. This attribute is used for setting an image in the background. आपके बैकग्राउंड में अगर कलर की जगह पर आपको अगर कोई इमेज सेट करनी है that you can do with the help of this background attribute. BG color is for background color and background is for setting an image. Okay, clear? Next one is font tag and its attributes. Font tag हम अभी पहले भी पढ़ चुके हैं. Again, now we will discuss the remaining attributes of the font tag. So font tag with the required attributes are used to change the font color, size and type of the text on the web page. यानी कि font का यूज़ क्या होता है? font tag का टेक्स्ट का कलर चेंज करना, साइज चेंज करना और टाइप ऑफ द टेक्स्ट चेंज करना. किस पर? वेब पेज पर. ओके. सो सी द एट्रीब्यूट्स दैट वी कैन यूज विद द फॉन्ट टैग कलर, साइज एंड फेस. कलर के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमें टेक्स्ट का कलर चेंज करना है सो वी यूज़ द कलर एट्रीब्यूट. अगर हमें उसी टेक्स्ट का साइज चेंज करना है सो वी यूज़ साइज एट्रीब्यूट. और अगर हमें फेस यानी कि टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग या पर्टिकुलर फॉर्मेट यूज़ करना है सो वी यूज़ द फेस एट्रीब्यूट. ओके. स्टाइल्स जो चेंज करनी है. ओके, क्लियर? सो दिस ऑल अबाउट द font tag and its attributes. Okay. Next one is the horizontal rule tag. Horizontal rule. Actually, this tag is used for creating the horizontal line, and for the tag it is used for this horizontal rule is HR tag. Okay, H for horizontal and R for rule. The purpose of HR tag is used to create a horizontal line on the वेब पेज. यानी वेब पेज पर अगर आपको कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, डिवाइड करना है अपने पेज को, सो दैट यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ दिस HR टैग. ओके. सो HR tag is having also one attribute. The name of it is size. Actually it defines the size or thickness of the horizontal line. Means अगर आपको अपनी horizontal line का size increase करना है और thick करना है so you can do with the help of this size attributes, and you have to use by this way. See, you have to write like this: angle bracket, then tag name, then you have to give a space for the writing the attribute name, then write the attribute, then equal sign, and then value of this attribute. Clear? So that you can use this HR tag. Clear? So now all the topics has completed of this chapter. So first see the demo session, then all the doubts will be clear. Thank you and have a nice day.